So welcome back Mavericks. Today we will discuss about Indian drainage system. आज हम जानेंगे कि ड्रेनेज सिस्टम क्या है और यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से हमें क्यों ड्रेनेज सिस्टम के बारे में जानना है, ड्रेनेज सिस्टम की सिग्निफिकेंस क्या है, इसका इकोनॉमिकल इम्पैक्ट क्या है, इसका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या है और एक्चुअल में ड्रेनेज सिस्टम एक कंट्री के लिए इम्पोर्टेंट क्यों होता है, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे. Why is the USA a superpower? This is a very simple question. USA आज एक इतनी बड़ी सुपर पावर क्यों है? क्यों यूएसए की जीडीपी सबसे बड़ी है? क्यों यूएसए की मिलिट्री इतनी स्ट्रॉन्ग है? अगर मैं आपको बोलूँ यूएसए इज़ ए सुपर पावर बिकॉज ऑफ इट्स ड्रेनेज सिस्टम, व्हाट वुड यू से? ऐसा कैसे हो सकता है? एक ड्रेनेज सिस्टम कैसे एक कंट्री को सुपर पावर बना सकता है? तो चलिए जानिए इस वीडियो के माध्यम से कि कैसे यूएसए की जो रिवर सिस्टम है मिसिसिपी, वो इसको कैसे सुपर पावर बनाती है. This is a map of all navigable waterways in America, and this project, which started more than 2 centuries ago, has resulted in more shipping routes within the US than the rest of the world combined. If you cross-reference this map with the population centers, you'll notice that more than 80% of people live within 150 miles of one of these waterways. And since shipping goods through water is an order of magnitude cheaper than shipping them over land, you can start to see how valuable this is. But this ambitious infrastructure project does much more than moving boxes within the country. And you'll see in a moment why this massive shipping network, which is hidden in plain sight, is responsible for taking America from mere self-sufficiency to a global superpower. Some may say that the construction was only possible because the US is blessed with perfect geography, and it is. But pulling it off was much more difficult than you might think. As this project began when the US was a young country, the highways didn't really exist. And since diesel engines were not invented yet, the only option to move goods on an unpaved road was a cart attached to an animal. So they looked to the rivers because moving goods through water was 3 times faster than anything else around. Although connecting all the rivers seemed like a simple idea, but to make them navigable through waterfalls and rapids, they had to figure out how to build canals, locks, and dams. And how do you do that without engineers? It's crazy to think that when they decided to build the first canal in Massachusetts in 1792, the US had no formal engineering schools, and the men serving as engineers were entirely self-taught. Some were lawyers, some were teachers, and by every measure, they were starting from scratch. But they figured it out and kept on building, all over the country. And in the early 1800s, they attempted to build the longest canal in America, which even President Thomas Jefferson thought was a little short of madness. But in 1825, the historical Erie Canal was finally complete, which connected the Great Lakes to the Atlantic Ocean and reduced the cost of shipping a barrel of flour from Rochester to Albany from $3 to just 75 cents. This changed everything. Commerce started to boom. Cities flourished alongside rivers and waterways. Then a series of lawsuits halted construction. And it turned out it was the railroad companies that served as a major transport alternative stood to lose a lot of money due to the extension of waterways. But federal courts ruled in favor of the projects. And today, out of 25,000 miles of inland and intracoastal waterways in the US, 12,000 miles are commercially active. And as incredible as this is, it's only half the equation. Because when I looked at the numbers and compared the freight traversing through America's waterways to other means of transport, like trucks and trains, I was shocked to say the least. So check this out. This is a barge that can carry 1,500 tons of cargo. And around 15 of these are lashed together to form a tow, which is typical in most rivers, which means a 15-barge tow can carry 22,500 tons. And it will take around 1,000 trailer trucks or 225 rail cars to move the same load. So, if the same amount of cargo that is shipped using the inland waterways in America each year were driven by road, we would need another 15 million trucks, which is absolutely insane. But the real magic is in the economics, where the farmers of the US and Brazil compete directly in the global market for soybean and corn. Let's compare soybeans landing costs from both countries
to Shanghai, China, the biggest importer of soybean in the world. So to produce 1 metric ton of soybean, it costs $293 to a farmer in Mato Grosso, Brazil, and $313 to a farmer in Davenport, Iowa. Now, by the time the cargo reaches the nearest saltwater port and is ready to be shipped overseas, see how the total cost is affected? And even though it costs the farmer in Iowa $20 more to produce a metric ton of soybean than a farmer in Brazil, savings from using waterways bring down the price enough to make the soybean from Iowa more competitive. And by the time the shipment reaches Shanghai, the soybeans produced in the US cost $5.35 less per metric ton than Brazil's, which is a massive advantage, considering millions of tons of cargo is exported every year. But there is also something about these waterways that is hard to replicate, which I have not touched on. That makes the US a superpower unlike any other, and it's the ability to move heavy military equipment, as these waterways have been developed and operated by the US Army Corps of Engineers since the early 1800s. Military depots, reactors, and launch sites are strategically placed along the waterways, and these routes were specially designed by maximizing the bays and lagoons to allow the US Navy to move not only within the country, but also along the coast, thereby avoiding open ocean crossings without the fear of submarines. All this to say that America's water resources infrastructure is not only a competitive advantage, but also an example where perfect geography meets excellent design. Well, that's it for. So as we saw in the video, the US river system provides us significant advantages, including efficient transportation and trade, access to international ports, water supply for agriculture, hydroelectric power generation, strategic military importance. These factors collectively contribute to the US economic growth, global trade dominance, energy production, and defense capabilities, which reinforcing its position as a superpower. So कैसे एक रिवर सिस्टम किसी भी कंट्री को अनफेयर एडवांटेज देता है, हमने वीडियो में भी देखा कि कैसे ड्यू टू दी ट्रांसपोर्टेशन थ्रू रिवर सिस्टम यूएसए के फार्मर्स को कैसे बेनिफिट और प्रॉफिट हो रहा था एज कम्पेयर टू ब्राज़ील फार्मर. सो द रिवर सिस्टम ऑफ एन nation is very important. So today we will going to understand the river system of India. What are the importance of Indian river system? So here's the case study for you. Before watching this case study, I will try to give you the depth analysis of that particular case study through this video. This video will help you to understand the context of that particular case study. So watch it carefully. देश की राजधानी दिल्ली और उससे होकर गुजरती एकमात्र नदी यमुना, कभी साफ निर्मल अविरल रही यमुना पिछले कई दशकों से प्रदूषित हो रही है, जिसके कारण यमुना का जल स्तर और दायरा सिकुड़ता जा रहा है. अब यमुना है कहाँ मैम? पहले यमुना थी, पहले तो बिल्कुल शीतल जल था, यहाँ बिल्कुल नीला पानी, 40 फुट 50 फुट पानी हुआ करता था. आज तो यहाँ देखने को नहीं, यमुना सूखी पड़ी है. यमुना मैया में अगर हमको सिक्का भी डाल देते थे तो निकल जाता था और रेत भी निकाल लेते थे. आज की डेट में तो रेत का नाम ही नहीं है पानी के अंदर. उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में यमुनोत्री से निकलने वाली यमुना उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जाकर गंगा नदी में मिल जाती है, तो वहीं पल्ला से यमुना दिल्ली में प्रवेश करती है और वजीराबाद से होते हुए दिल्ली का लगभग 50 किलोमीटर का रास्ता तय करती है. एक गैर सरकारी संस्था टेरी यानी द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के अनुसार वजीराबाद से ओखला के बीच यमुना 22 किलोमीटर का रास्ता तय करती है, जो कि यमुना नदी की कुल लंबाई का सिर्फ 2% है. लेकिन इसी 2% में नदी का 80% से अधिक प्रदूषण बहता है. देखिए, यमुना में पानी का जो लेवल कम हो रहा है उसके पीछे कई रीज़न है. सबसे मेन रीज़न है इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, क्योंकि इलीगल और लीगल इंडस्ट्रीज़ दिल्ली में दोनों ही इंडस्ट्रीज़ काफ़ी गंदगी डाल रही हैं.
दूसरा मेन रीज़न है कि प्रॉपर ट्रीटमेंट ना हो पाना। इसके लिए एसटीपी सीईटीपी लगाए गए हैं, पॉलिसी में वो सब है, डॉक्यूमेंट्स के ऊपर सब कुछ है, लेकिन वो प्रॉपर या इफ़ेक्टिव तरीके से काम नहीं कर पा रहे। आज भी लगभग 2 दर्जन ड्रेन्स हैं जो मेजर ड्रेन्स हैं दिल्ली के स्ट्रेच में यमुना को पॉल्यूट कर रहे हैं। यमुना के आसपास भी इलीगल बोरवेल, काफ़ी लीगल बोरवेल्स लगे हुए हैं जिसको अलग अलग पर्पज़ में यूज किया जा रहा है उस पानी को। उस वजह से भी पानी के स्तर में गिरावट आ रही है। अब बात आती है कि इसके दायरे के सिकुड़ने के, बिल्कुल जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन बढ़ रहा है, कुछ बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं, तमाम फ्लाईओवर्स बनाए जा रहे हैं, मेट्रो रूट्स बनाए जा रहे हैं फ्लड प्लेन से, तो नदी का जो आकार है लगातार सिकुड़ता जा रहा है। पानी में अगर बीओडी यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिसॉल्व और डीओ यानी डिसॉल्व ऑक्सीजन की बात की जाए तो उसके स्तर में भी बदलाव देखे गए हैं। जहां बीओडी स्तर बढ़ता है तो पानी में ऑक्सीजन कम होता है और उससे नदी में पल रहे जीवों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। वहीं अगर डीओ की मात्रा घटती है तो ये बताता है कि पानी में ऑक्सीजन कम हो रहा है और प्रदूषण बढ़ रहा है। इधर यमुना के जल स्तर में भारी गिरावट के चलते नदी पर निर्भर रहने वाले लोगों की जीविका पर भी प्रभाव पड़ रहा है। पानी कम होने की वजह से फर्क पड़ा है अभी बहुत ज़्यादा। अब तो पहले तो खेती बहुत आसान थी। पहले था ये नदी ऊपर हुआ करती थी तो पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। खेती हाँ ऐसे बगैर पानी की खेती होती थी। और अब साधन ख़त्म हो गए, लोग बाहर निकलने लगे, यहाँ से भाग के चलने लगे और धंधा कर रहे हैं अपना, कोई किसी चीज़ का धंधा बाहर निकल के जब निकलने लगे अब लोग। अब कब तो जो है ना ये बाहर से आते हैं कुछ लोग, वो बेचारे खेती वेती कर रहे हैं। मेन जो किसान है वो तो छोड़ बगे। विशेषज्ञों के अनुसार दिल्ली की ओर यमुना में कम से कम 2500 क्यूसेक पानी होना चाहिए। यमुना नदी की गहराई का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि कई जगह लोग यमुना पैदल ही पार कर लेते हैं। दिल्ली के आईटीओ घाट पर रहने वाले पप्पू पंडित की पिछली 5 पीढ़ियां पेशे से तैराक रही हैं। मेरी जो यमुना नदी से जो मेरा रुझान है वो बचपन से ही है। यहीं तैर के इतने बड़े हुए हैं। 40-42 साल पहले यमुना नदी बहुत साफ़ थी और अच्छा पानी था। लोग बाग सुबह नहा के यहाँ से जाते थे। अब देखिए यमुना का कोई नहाना, डुबकी लगाना भी पसंद नहीं कर रहा। अब बच्चे जो हैं बाहर जाने लग गए, स्विमिंग पूलों में जाने लग गए। दिल्ली में यमुना बायोडाइवर्सिटी पार्क को कंजर्वेशन के जरिए स्थापित करने वाले एक वरिष्ठ वैज्ञानिक फयाज खुदसर यमुना को साफ करने के तरीके बताते हैं। अगर हम गौर करें कि इस नदी को हम बचाएं कैसे, जिंदा कैसे करें, एग्जिस्टिंग वेटलैंड या जो वेटलैंड भर चुके हैं उनको फिर से रिस्टोर करें, नदियों के फ्लड प्लेन को बचा पाए इंक्रोचमेंट से। फ्लड प्लेन वेटलैंड में पानी जमा करके बाढ़ का अगर हम चाहें तो इस नदी को बचा सकते हैं। उसके ग्रासलैंड और फॉरेस्ट इकोसिस्टम को फिर से रिस्टोर कर पाए तो नदियाँ जी उठेंगी। दिल्ली सरकार समय समय पर यमुना को साफ करने का वादा करती रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अगले चुनाव तक यमुना को साफ करने का वादा भी किया है और उसके लिए प्रक्रिया भी साझा की है। इस वाले चुनाव में जब दिल्ली का चुनाव लड़ा था, मैंने प्रॉमिस किया था दिल्ली वालों को कि अगले चुनाव तक मैं यमुना को साफ कर दूंगा। So we saw in the video the condition of Yamuna. So here's the case study in front of you. The AAP government has lost the election, and as per his pre-election promise, Prime Minister Narendra Modi has now taken direct responsibility for cleaning the Yamuna river. Okay, in this historic move, you who are watching as an IAS officer, अपने आप को एक IAS ऑफिसर कंसिडर करो एंड उस पर्सपेक्टिव से इस केस स्टडी को देखो. ओके, so you as an IAS officer have been chosen to lead this ambitious project, one that will define the future of urban river restoration in India. The Prime Minister has set strict guidelines and high expectation, emphasizing the need for a scientifically sound, economically viable and socially inclusive approach. As we know, the Yamuna, one of the most sacred and historical significant river, has now become a symbol of pollution and environmental mismanagement. Nearly 80% of its pollution load accumulates in the Delhi stretch,
where untreated sewage, industrial effluents, encroachment, and solid waste dumping have choked the river. तो अगर आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है तो कैसे कैसे आप यमुना को क्लीन करोगे? सोचो, अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि आपको यमुना क्लियर करनी है, क्लीन करनी है, तो कैसे करोगे? केजरीवाल जी 10 साल में नहीं कर पाए तो आप कैसे करोगे? तो बिफोर solving this problem, you need to understand the problem. What is problem of in this context? Pollution in the river. So to solve this problem, you need to first understand the river system. To clean the Yamuna, you must first understand its hydrology, its tributary, its seasonal flow pattern, and its role in the Ganga basin. Without understanding the river system, you cannot be able to solve the problem of Yamuna river. So to understand the problem well, you need to first understand the river system. Let's understand the river system to solve the problem of Yamuna pollution. So what is the meaning of drainage system? This is a definition which is written in the NCERT. The flow of water through well-defined channels is known as drainage, and the network of such channels is called drainage system. बट अगर हम इसे सिंपल वे में समझे तो कैसे समझ सकते हैं? मान लो जो लैंड है ना, वो एक छत है. हमारे घरों के ऊपर छत होती है ना. एंड व्हेन इट रेन्स, water needs a way to flow of it. A drainage system is like the network of pipes, gutters, and slopes that guide rainwater to lakes, rivers, or the ocean. एक और एग्जांपल से समझते हैं इसे. सोच, एक पहाड़ पर बारिश हो रही है, और जो वो बारिश हो रही है, जो उसका पानी है जो पहाड़ के ऊपर गिर रहा है, वो एकदम से एब्जॉर्ब तो होगा नहीं, बल्कि स्ट्रीम्स के जरिए वो नीचे फ्लो करने लग पड़ेगा. और जो वो छोटी छोटी स्ट्रीम्स होगी ना, वो ट्रिब्यूटरी से जाके मिलेगी, और वही ट्रिब्यूटरी आगे जाके रिवर में डिस्चार्ज हो जाएगी, और वही रिवर आगे जाके एक पर्टिकुलर सी में डिस्चार्ज हो जाएगी. इस पूरे सिस्टम को ड्रेनेज सिस्टम बोलेंगे. एक एरिया में रिवर, ट्रिब्यूटरी और स्ट्रीम्स आपस में इंटरकनेक्टेड होती है, जैसे ब्रांचेस ऑफ ट्री. इनका पूरा नेटवर्क होता है जिसमें वाटर अपने फिक्स्ड रास्ते पर ही फ्लो करता है, और उस फिक्स्ड रास्ते को और पूरे एरिया को ड्रेनेज सिस्टम बोलते हैं. ओके. बट इसमें एक और पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी यूज़ की है, वो है चैनल. तो चैनल क्या है? ए चैनल रेफर्स टू द फिजिकल पाथवे थ्रू विच रिवर और वाटर फ्लोज. It is a part of the river that carries the main flow of water, usually bordered by the banks on both sides. Channel can vary in shape and size depending on the factor like water volume, sediment load, and erosion processes. So, in simple, एक रिवर एक पर्टिकुलर एरिया से मूव करेगी ना, उसको चैनल बोलेंगे. ओके. ये ना एक लाइन लिखी है एनसीईआरटी में, जिसको उन्होंने ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया, पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है. इसमें लिखा है कि एक ड्रेनेज पैटर्न ऑफ एन एरिया इज़ द आउटकम ऑफ द जियोलॉजिकल टाइम पीरियड
nature and structure of rocks, topography, slope, amount of water flowing and the periodicity of the flow. इसका मतलब क्या है? सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ड्रेनेज पैटर्न क्या होता है. Drainage pattern means, in simple terms, drainage pattern means how the water moves. In simple, पानी कैसे बह रहा है. अलग अलग टाइप से बहेगा, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा. जो मेरा वाटर का फ्लो रहेगा, अगर मान लो मैं एक टेबल है उसके ऊपर पानी फेंकता हूँ और एक स्पंज है उसके ऊपर पानी फेंकता हूँ और एक चेयर है उसके ऊपर पानी फेंकता हूँ, तो तीनों का जो पैटर्न होगा उसके ऊपर गिरने के बाद जो मेरा पानी मूव करेगा सेम होगा? नहीं, वो डिपेंड करेगा कि पानी किसके ऊपर बह रहा है. सेम एज इट इज़ रिटन इन देयर नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ द रॉक. यस, रॉक्स के ऊपर डिपेंड करेगा. टोपोग्राफी, यस, ऊंचाई और ऊंचाई उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा. स्लोप, अगर स्लोप मेरी ज़्यादा स्ट्रीप होगी तो प्रेशर ज़्यादा जल्दी होगा. अगर मेरा स्लोप बहुत कम होगी तो प्रेशर फ्लो कम होगा, स्पीड कम होगी उसकी. और अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोइंग, यस, अगर छोटी रिवर है तो कम सेडिमेंट करेगी कलेक्ट. बड़ी रिवर है तो ज़्यादा सेडिमेंट कलेक्ट करेगी, ज़्यादा इरोजन होगा. एंड द periodicity ऑफ वाटर, यस, इट इज़ डिपेंड ऑन द periodicity ऑफ द वाटर. तो इसका मेन, इस लाइन का पूरा जो सार है वो यही है कि जो ड्रेनेज पैटर्न है ना वो सेम नहीं होगा. गंगा का अपना होगा, इंडस का अलग होगा, ब्रह्मपुत्र का अलग होगा, नीचे जो मेरी पेनिनसुलर रिवर है उनका अलग होगा. क्यों? क्योंकि जो मेरी रिवर का बेड है, जो मेरी रिवर जहाँ से गुजर रही है, वो कंडीशन हर जगह अलग अलग है. इस कारण जो मेरा ड्रेनेज पैटर्न होगा, तभी तो लिखा है ना, द ड्रेनेज पैटर्न ऑफ एन एरिया इज द आउटकम. एंड आगे उसके फैक्टर्स मेंशन किए हैं. ओके, सो हमें रिवर सिस्टम जानने से पहले ना कुछ उसके की कंसेप्ट्स हैं जिसको हमें अच्छे से समझना पड़ेगा, तभी हम रिवर सिस्टम को अच्छे से समझ पाएंगे. ओके, तो फर्स्ट है वाटरशेड. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वाटरशेड? सोचो क्या होता होगा अगर आप इस डायग्राम को देखोगे. तो डायग्राम को देख के क्या लगता है आपको? व्हाट इज वाटरशेड? सोचो. A watershed is an area of land where all water that falls in it. I'll repeat. A watershed is an area of land where all the water that falls in it, such as rain or snow, drains into a common water body like a river, lake, or ocean. It is essentially the land area that collects and directs water to a particular stream or river. अब जो ये ना रेड रेड डॉट है, जब इसके ऊपर पानी गिरेगा तो क्या होगा? ये एक पर्टिकुलर स्ट्रीम की तरफ जाएगा. अगर जो मेरा लेफ़्ट साइड वाला वाटरशेड है, मतलब कि स्लोप है माउंटेन की, वहाँ से भी मेरी रिवर की तरफ पानी जाएगा. और जो मेरी राइट साइड की स्लोप है वहाँ से भी पानी मेरे रिवर की जाएगा. तो वाटरशेड क्या कर रहा है? वाटरशेड डिसाइड कर रहा है कि पानी किधर को जाएगा. ओके, वी कैन थिंक ऑफ ए वाटरशेड एज ए giant natural funnel. You know what is funnel? When it rains, the water flow downhill through the smaller streams and rivers, eventually reaching a larger body of water. The boundary of a watershed is called a watershed divide, which separates it from a watershed. अब जो इधर का वाटरशेड है लेफ्ट साइड वाला, मान लो इसके आगे एक और माउंटेन है, तो वो डिवाइड कर रहा है ना दो वाटरशेड को.
So, in simple terms, a watershed is the land area where all water flows to a one specific river or lake. Okay? क्लियर है? ड्रेनेज बेसिन. तो ड्रेनेज बेसिन क्या है फिर? एक रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज जितने एरिया से वाटर कलेक्ट करती है ना, उसे ड्रेनेज बेसिन कहते हैं. देखो, बिल्कुल सिंपल वे में बताया मैंने आपको. एक रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरी जितने एरिया से ना वाटर कलेक्ट करती है ना, उससे ड्रेनेज बेसिन कहते हैं. ड्रेनेज बेसिन, जैसा कि हमने अभी बोला कि एक रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरी जितने एरिया से वाटर कलेक्ट करती है ना, उसे ड्रेनेज बेसिन कहते हैं. एग्जाम्पल के लिए गंगा बेसिन और इंडस बेसिन. बट कलेक्ट करते हैं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एक रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज उस एरिया से पानी रिसीव करते हैं जो रेनफॉल, ग्लेशियर मेल्ट या अंडरग्राउंड वाटर के जरिए उस बेसिन में आता है. जब वाटर उस पर्टिकुलर एरिया में आएगा ना, चाहे वो रेनफॉल हो या ग्लेशियर मेल्ट हो या अंडरग्राउंड वाटर हो, उसको बोलते हैं हम कलेक्ट करता है. बट बेसिन का क्या मतलब है? इन सिंपल, बेसिन एक डिप्रेस्ड एरिया है जिसमें पानी कलेक्ट होता है. ओके, एक डिप्रेस्ड एरिया जिसमें पानी कलेक्ट होता है. जब हम ड्रेनेज बेसिन की बात करते हैं ना, तो इसका मतलब है कि एक ऐसा एरिया जहाँ से एक मेन रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज पानी कलेक्ट करती हैं और फ्लो करती हैं. एक सोचो, एक बाउल है, कटोरा, एक बाउल है जिसमें चारों तरफ से पानी आ रहा हो. यही कंसेप्ट एक रिवर बेसिन का भी होता है. जैसे आप ये देख लो, बीच में एक रिवर है, उसके चारों तरफ से पानी आ रहा है. उसको ग्लेशियर का पानी भी आ रहा है, उसको रेन वाटर पानी का भी वाटर आ रहा है, उसको ग्राउंड वाटर भी आ रहा है. ओके, सो दैट इज ड्रेनेज बेसिन. नेक्स्ट इज ड्रेनेज पैटर्न. यह हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि जो ड्रेनेज पैटर्न है वो इट इज़ द आउटकम ऑफ द रॉक स्ट्रक्चर, द टोपोग्राफी और काफ़ी सारे फैक्टर जिसके ऊपर डिपेंड करता है. सो डिफरेंट ड्रेनेज पैटर्न होते हैं. जैसे डेंट्रिक पैटर्न, जो ट्री लाइक ब्रांचेस होती है इसकी. एग्जांपल गंगा. रेडियल पैटर्न, जिसमें पानी सब डायरेक्शन से आउटवर्ड फ्लो करता है, जैसे एक वोल्केनो. इसकी एग्जांपल है अमरकंटक प्लेट्यू रिवर. सेंट्रीपिटल पैटर्न, इसमें क्या होता है कि पानी एक सेंट्रल डिप्रेशन की तरह फ्लो करता है, जैसे लोकतक लेक रिवर. सेंट्रीपिटल पैटर्न क्या होता है कि जो वाटर है वो एक सेंट्रल डिप्रेशन की तरफ फ्लो करता है. मान लो कि एक बाउल की तरह सारी तरफ से पानी आएगा और एक सेंटर में जो डिप्रेशन है उसकी तरह फ्लो करेगा. ओके, लोकतक लेक में भी ऐसे होता है. सो यू अंडरस्टैंड व्हाट इज ड्रेनेज पैटर्न एंड डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रेनेज पैटर्न. और एक और है ट्रेलिस पैटर्न. इसमें क्या होता है, पैरेलल स्ट्रीम्स इंटरसेक्टिंग एट राइट एंगल लाइक नर्मदा रिवर सिस्टम. पैरेलल स्ट्रीम जा रही होंगी और एक वो राइट एंगल पे दोनों में इंटरसेक्ट कर लेगी. ओके, अनदर की कंसेप्ट इज ड्रेनेज डिवाइड. एक बाउंड्री, अगर हम ना सिंपल वे में पढ़ेंगे, हम जो बुक की डेफिनेशन है ना उनको रिमेंबर नहीं करेंगे, हम कंसेप्ट को इन डेप्थ समझेंगे. सो ड्रेनेज डिवाइड क्या हुआ?
एक बाउंड्री जो दो ड्रेनेज बेसिन को अलग करती है। सिंपल। जो ड्रेनेज बेसिन को अलग करती है बाउंड्री, उसे ड्रेनेज डिवाइड कहेंगे। एग्जांपल, वेस्टर्न घाट डिवाइड वेस्टर्न फ्लोइंग और ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर। जो वेस्टर्न घाट है वो वेस्ट फ्लोइंग रिवर और ईस्ट फ्लोइंग रिवर को सेपरेट करता है। सो वेस्टर्न घाट क्या हुआ मेरा? ड्रेनेज डिवाइड हुआ। यस। सो टाइप ऑफ ड्रेनेज। सो मेरे मेनली जो इम्पोर्टेंट है वो तीन है। एक्सोरिक, जिसमें है ओपन। एक्सोरिक ड्रेनेज हुआ मेरा, वो ड्रेनेज होता है ये रिवर सी या ओशन में ड्रेन करती है। एग्जांपल गंगा ब्रह्मपुत्र। एक्सोरिक में क्या होगा, इसको ओपन भी बोलेंगे, जो रिवर्स सी में या ओशन में मर्ज हो जाती हैं, ड्रेन हो जाती हैं। और एंडोरिक क्या होगा, क्लोज्ड। इसमें रिवर्स जो इनलैंड बेसिन या लेक्स में ही टर्मिनेट करती हैं। एग्जांपल के लिए समर लेक, मतलब वो रिवर्स जो ओशन तक पहुंच जाती है उसको हम एक्सोरिक बोलेंगे। जो ओशन तक नहीं पहुंच पाती, जो किसी लेक में ख़त्म हो जाती है, इसको बोलेंगे एंडोरिक। और तीसरा होगा इनलैंड ड्रेनेज। ये रिवर ड्राई रीजन में एवेपोरेट हो जाती है या ग्राउंड में एब्जॉर्ब हो जाती हैं। एग्जांपल लूनी रिवर। सो हमने तीन टाइप के ड्रेनेज देखे, एक्सोरिक, एंडोरिक एंड इनलैंड ड्रेनेज। सो नेक्स्ट इज स्टेजेस ऑफ रिवर। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। रिवर इवॉल्व ओवर टाइम, वी नो। हिमालयन पे जो रिवर होंगी वो अलग होंगी, जो मेरे गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन पे जो मेरी रिवर होगी वो अलग होगी। सो रिवर इवॉल्व ओवर टाइम एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज डिपेंडिंग ऑन देयर एज or stage of development. There are three main stages of a river. Although we discussed this concept while we understanding the Indus Ganga Brahmaputra plain, 3 stages होती है रिवर की। कौन कौन सी स्टेज होती है? यंग, मैच्योर एंड ओल्ड। जैसे इंसान की भी 3 स्टेजेस होती है, यंग, मैच्योर और ओल्ड। अब इसको इस एनालॉजी से समझो, जब इंसान यंग होता है तो उसके पास एनर्जी ज़्यादा होती है, कम होती है? एनर्जी ज़्यादा होती है। और जब मैच्योर होता है उस टाइम भी काफ़ी एनर्जी होती है, पर कम होती है एज़ कम्पेयर टू यंग एज। पर जब ओल्ड हो जाता है तो सबसे कम एनर्जी होती है। पर जब वो यंग होता है तो फास्ट मूव करता है या स्लो मूव करता है? ऑब्वियसली बात है कि एनर्जी ज़्यादा तो फास्ट मूव करेगा। मैच्योर स्टेज में थोड़ी सी एनर्जी कम होती है तो थोड़ा स्लो मूव करेगा। और ओल्ड स्टेज में थोड़ी और कम एनर्जी तो थोड़ा और कम स्लो मूव करेगा। सेम एनालॉजी अप्लाई टू रिवर। जो मेरी यंग रिवर होगी ना, उसके की फीचर्स क्या होंगे? वो कहाँ पे पाई जाएंगी? दे आर फाउंड इन माउंटेनियस और हाई एल्टीट्यूड एरिया। दे आर फास्ट फ्लोइंग। They are fast flowing water with steep slopes. They will form deep and narrow valleys, V-shaped narrow valleys, because of the high energy. It has high erosion power. High erosion power क्यों है? क्योंकि इनके पास velocity ज़्यादा है, तो वो rocks को ज़्यादा erode करेगी। That is a young stage. इसकी एग्जांपल क्या है? अपर गंगा, भागीरथी, अलकनंदा इन उत्तराखंड, ब्रह्मपुत्र इन तिब्बत, इंडस इन लद्दाख। जो सेकंड स्टेज है वो है मेरी मैच्योर स्टेज। इसके की फीचर्स क्या होंगे जो मेरी मैच्योर स्टेज है? इट विल फाउंड इन प्लेन एंड प्लेट्यू, मॉडरेट फ्लो ऑफ स्पीड होगा। और जो मेरी यंग स्टेज में वैली वी शेप्ड फॉर्म में होगी, वी शेप्ड फॉर्म में थी, अब वही वैली यहाँ पे आके क्या हो जाएगी? वाइडर।
और इसका एक और करेक्टरिस्टिक्स होगी, की फीचर्स में क्या आएगा, मियंडरिंग करेंगे अब मैच्योर स्टेज में आके, और इसमें जो इरोजन और डिपोजिशन होगा वो बैलेंस होगा, और अब फ्लड प्लेन्स मेरे बनने शुरू हो जाएंगे, मेकिंग द लैंड फर्टाइल। ये सभी की फीचर्स मेरे यंग स्टेज में नहीं थे, ये मैच्योर स्टेज में है। इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है, इसकी एग्जांपल हो सकती है गंगा इन उत्तर प्रदेश एंड बिहार, ब्रह्मपुत्र इन असम। सो फर्स्ट है मेरी यंग, सेकंड है मैच्योर, और थर्ड कौन सी है, ओल्ड रिवर। इसकी की फीचर्स क्या होंगे, इट विल फाउंड नियर द कोस्टल रीजन और डेल्टाज, और इसमें एनर्जी क्या होगी, बिल्कुल कम। उसके कारण क्या होगा, वेरी स्लो मूविंग वाटर, और इसमें जो वैल्यूज होंगी वो और ज़्यादा वाइड हो जाएंगी। इट विल क्रिएट्स ऑक्सबो लेक्स, लेवीज एंड स्वैम्प्स, और इसमें हाई डेपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स होगा विच विल फॉर्म डेल्टाज, बट इट इज़ आल्सो प्रोन टू फ्लडिंग ड्यू टू लो ग्रेडियंट। इसमें एग्जाम्पल क्या हो सकता है, इसमें मेरा एग्जाम्पल हो सकता है गंगा ब्रह्मपुत्र इन बांग्लादेश इन सुंदरबन डेल्टा। सो इसके कंक्लूजन में मैं बोल सकता हूँ ना कि ए रिवर जर्नी स्टार्ट विद एनर्जी, मैच्योर विद बैलेंस एंड एंड बाय स्प्रेडिंग लाइफ इन द फॉर्म ऑफ fertile deltas. Understanding these stages help in flood control, agriculture and water management. I think you now understand the 3 stages of the river. It is clear to you. So जो watershed और drainage basin है ना, वो दोनों ना लगते सेम ही हैं, पर वो अलग अलग है। जो मेरा watershed है वो स्मॉलेस्ट हाइड्रोलॉजिकल यूनिट है, और जो मेरा ड्रेनेज है वो लार्जेस्ट यूनिट कवरिंग एन एरिया है। अब इस चार्ट को देख सकते हो, इस टेबल को अच्छे से देखो, और आपको दोनों में डिफरेंस पता लग जाएगा। एक ना एनसीईआरटी में लाइन लिखी है, रिवर बेसिन एंड वाटरशेड आर मार्क्ड बाय यूनिटी। इसका क्या मतलब है, रिवर बेसिन एंड वाटरशेड्स आर मार्क्ड बाय यूनिटी। इसका सिंपल मतलब है कि what happen in one part of the basin or watershed directly affects the other part and the unit as a whole. That is why they are accepted as the most appropriate micro, meso और macro planning regions. अगर मेरी स्मॉलेस्ट यूनिट वाटरशेड है और लार्जेस्ट यूनिट मेरा ड्रेनेज बेसिन है, अगर मान लो स्मॉलेस्ट पार्ट में मेरा इम्पैक्ट पड़ेगा तो ऑब्वियस ही बात है जो मेरी लार्जर पार्ट है उसके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। ओके, सो ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। सो इंडिया का ड्रेनेज सिस्टम है ना, इट इज कंसिस्ट ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एंड बिग रिवर्स। इट इज द आउटकम of the evolutionary process of the 3 major physiographic units and the nature and characteristics of precipitation. So हमें अभी क्वेश्चन है, why do we need to understand the Indian drainage system? हमें क्यों पढ़ना यार, हमें क्यों ड्रेनेज सिस्टम के बारे में जानना है? क्या होगा ड्रेनेज सिस्टम के बारे में जान के यार? हाउ वी कैन इफेक्टिवली मैनेज द रिसोर्सेज ऑफ द रिवर इफ वी डोंट नो द अबाउट इट। इतने सारे रिसोर्सेज है ड्रेनेज सिस्टम में, अगर हम उसके बारे में पता ही नहीं होगा तो कैसे मैनेज करेंगे? बिकॉज इन द एंड वी आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी। आफ्टर क्लियरिंग दिस एग्जाम वी विल गोइंग टू बिकम एन IAS ऑफिसर। So how we are going to form policies on river system if we don't have the understanding of the river system or drainage system? How we can implement flood control measure if we don't understand their pattern, their history, their origin?
type of drainage system also affect the soil fertility, even the irrigation patterns or practices. If you don't understand how you can make agriculture policies, you will going to run this country through policies. So understanding the drainage system of India is essential for several reasons: water resource management, flood and drought prediction, agriculture and irrigation, ecological balance, hydropower generation, economical significance, sustainable development goals. We need to effectively manage our river system. So we can say that the drainage system of India influence many aspects of the nation environment, economy and society, making it crucial to grasp its importance for sustainable development and planning. Okay? So Indian drainage system on the basis of discharge of water मतलब पानी कहाँ पे डिस्चार्ज हो रहा है, orientation to the sea, it may be grouped into the Arabian Sea drainage and the Bay of Bengal drainage. We can understand the meaning of these two terms through this map. मेरी कुछ रिवर्स होंगी जो बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करेंगी और कुछ रिवर्स होंगी जो अरेबियन सी में ड्रेन करेगी. So that's why we choose these two terms as Arabian Sea river system जो डिस्चार्ज करेंगी वहाँ पे, और बे ऑफ बंगाल में डिस्चार्ज करेंगी. इसके थ्रू हम इंडिया के ड्रेनेज सिस्टम को समझ सकते हैं. ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑन व्हाट बेसिस डू वी करेक्टराइज रिवर? हम रिवर को कैसे करेक्टराइज करते हैं? व्हाट आर द क्राइटेरिया for the characterization of river? How we can say that this river is different from another river? In the end, both are carrying the water and water are same. Then how we are going to characterize the different kind of rivers? We will going to characterize the different kind of river on the basis of mode of origin, nature, and what are the characteristics of that particular river. मोड ऑफ ओरिजिन मतलब वो कैसे ओरिजिनेट हो रही है, उसका नेचर क्या है, उसकी की करेक्टरिस्टिक्स क्या है उस रिवर्स की. इसके बेसिस पे हम रिवर्स को करेक्टराइज कर सकते हैं. सो वी कैन इन इंडिया वी हैव टू टाइप ऑफ ड्रेनेज सिस्टम, हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम एंड peninsular drainage system. So here are the table about the Himalayan river system and peninsular river system. You can take a screenshot और पॉज कर सकते हो आप वीडियो को. अब इसको नोट डाउन कर लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है. प्लेस ऑफ ओरिजिन, कहाँ से ओरिजिनेट होती है मेरी हिमालयंस? ग्लेशियर एंड स्नोफील्ड्स इन द हिमालयास. और ऑन द सेकेंड हैंड जो मेरी पेनिनसुलर रिवर्स हैं वो प्लेट्यू के ऊपर ओरिजिनेट होती है थ्रू रेन वाटर. नेचर ऑफ फ्लो क्या है हिमालयन का? पेरिनियल. पेरिनियल क्यों है? क्योंकि वो थ्रू आउट द ईयर फ्लो करेगी. और जो मेरी पेनिनसुलर रिवर वो सीजनल है, इसका डिपेंड करेगा फ्लो मॉनसून रेन्स पे. टाइप ऑफ ड्रेनेज क्या है? डेंट्रिक और रेडियन एंड टेरेलिस. नेचर ऑफ रिवर क्या है? ये मेंडर करेंगी ड्यू टू सॉफ्ट सेडिमेंट्स, दे फॉर्म लार्ज बैंड एंड ऑक्सबो लेक्स. और ये स्ट्रेट एंड फिक्स्ड कोर्स. क्यों मेरा पेनिनसुलर रिवर का जो नेचर है वो स्ट्रेट एंड फिक्स कोर्स है? बिकॉज इट विल फ्लो ओवर हार्ड रॉक्स. हमें पता है ना, हमने पढ़ा था जियोलॉजिकल डिवीजन में अपने पेनिनसुलर प्लेटो के बारे में. मेरे जो पेनिनसुलर प्लेटो कैसे फॉर्म हुए थे? बिकॉज ऑफ द वोल्केनिक इरप्शन. बट जो मेरे हिमालयस है वो कैसे फॉर्म हुए थे? बिकॉज ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट. इंडियन टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट स्ट्राइक की थी यूरोशियन टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट के कारण. जो मेरे वो स्ट्राइक हुआ था, जो प्लेट बाउंड्री इंट्रैक्शन हुई थी, उसके कारण क्या हुआ? वहाँ पे जो सॉइल फॉर्म हुई ड्यू टू सॉइल इरोजनल एक्टिविटी के कारण वो सॉफ्ट सॉइल है.
जो मेरी एलुवियल सॉइल है वो सॉफ्ट है, पर जो मेरे पेनिनसुलर प्लेटू है वो रॉक्स से सॉइल बनी हुई है और वहाँ पे ज़्यादातर रॉक्स है। इस कारण उसका जो नेचर है वो स्ट्रेट एंड फिक्स्ड कोर्स है। बट जो मेरी हिमालयन रिवर है वो मेंटरिंग करती है कैचमेंट एरिया, लार्ज एंड एक्सटेंसिव, और पेनिनसुलर रिवर का स्मॉलर एंड लोकलाइज्ड। एज ऑफ रिवर यंग एंड एक्टिव, इरोजनल एक्टिविटी लाइक वैली डीपनिंग एंड कोर्स शिफ्टिंग। पेनिनसुलर रिवर का ओल्ड एंड स्टेबल, रिवर्स हैव रीच्ड मैच्योरिटी विद वेल डिफाइंड कोर्स। ओके, हमने एक टर्म यूज़ किया अभी, कैचमेंट एरिया। सो व्हाट इज कैचमेंट एरिया एंड व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच द कैचमेंट एरिया डिपेंड्स? We will going to understand the catchment area through this diagram. You can see watershed, ridge, watershed divide. So a catchment area is a region of land where all surface water from rainfall, streams and tributaries drain into a common river, lake or other water body. Even land surface is part of catchment, which is separated from neighboring catchments by watersheds. So catchment area मेरा कुछ नहीं है। इस डायग्राम में आप जो भी देख रहे हो वाटर का सोर्स, कहाँ कहाँ से मेरा वाटर रिवर तक आ रहा है, वो सारा मेरा कैचमेंट एरिया है। अब क्वेश्चन है, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच द कैचमेंट एरिया डिपेंड्स? तो कौन से फैक्टर्स के ऊपर मेरा जो कैचमेंट का एरिया वो डिपेंड करेगा? बड़ा इजी है, टोपोग्राफी। जो मेरे वाटरशेड के ऊपर है और जो मेरी लेक के पास है, दोनों में वेरी करेगा पानी। यस। क्लाइमेट के कारण मेरा कैचमेंट एरिया डिपेंड करेगा। यस। वाटर क्लाइमेट के कारण तो पड़ेगा कि वो वहाँ पे जो वाटर है, जो रेनफॉल है वो कितने में, मतलब कितना रेनफॉल हो रहा है वहाँ पे। जियोलॉजी, yes. Soil type, as in the case of peninsular river or Himalayan river, both are different, so it also depends upon the soil type. Vegetation cover, yes, vegetation also impact the catchment area. जहाँ पे वेजिटेशन ज़्यादा होगा वहाँ पे वाटर अलग तरह से फ्लो करेगा, और जहाँ पे वेजिटेशन कम होगा वहाँ पे वाटर अलग तरह से फ्लो करेगा। यस। लैंड यूज एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़ वी कैन understand through deforestation, slope gradient, yes, it can vary. So we understand what is catchment area and what are the factors on which the catchment area depend. Now the next question is, between the Himalayan river and peninsular river system, which one experience higher erosion? The answer is very simple, Himalayan rivers. The Himalayan river system experience higher erosion compared to peninsular river due to following reason. क्योंकि वो यूथफुल स्टेज और एक्टिव जियोलॉजी है, फ्लो थ्रू टेक्टोनिकल एक्टिविटी, यंग फोल्ड माउंटेन, हाई ग्रेडियंट एंड स्टीप स्लोप है, फास्टर फ्लो है, इंक्रीज इरोजनल कैपेसिटी, ग्लेशियर एंड रेनफॉल सोर्सेज है, सेडिमेंट ट्रांसपोर्टेशन। एज वी अंडरस्टैंड, हिमालयन रिवर कहाँ से पास करती है? लूज एलुवियल मटेरियल विच इज़ easily eroded as compared to hard rocks which is found in the peninsular plateau. Meandering and lateral erosion, frequent landslide and rock falls, high river discharge because of the continuous supply throughout the year. So हमारा जो फर्स्ट डिवीज़न है इंडियन रीजन सिस्टम का वो है हिमालयन रिवर सिस्टम। इसमें 3 मेजर रिवर है, इंडस, ब्रह्मपुत्र एंड गंगा। सिंस these rivers are fed both by melting of snow and precipitations, this is called as perennial. I'm not able to spell it right. Perennial. So there are 3 questions. Which is the largest river in Indian subcontinent?
विच इज़ द लार्जेस्ट रिवर इन द इंडिया एंड विच इज़ द लार्जेस्ट रिवर इन द टर्म्स ऑफ वॉल्यूम? तो क्या लगता है, इंडस, ब्रह्मपुत्र और गंगा में से लार्जेस्ट रिवर कौन सी है सब इंडियन सब कॉन्टिनेंट में? गंगा, ब्रह्मपुत्र या इंडस? कौन सी है? वीडियो पॉज करो और अपना आंसर सोचो। क्या आपका आंसर भी यही था? इंडस का फर्स्ट नंबर पे है, सेकंड पे ब्रह्मपुत्र है और थर्ड पे गंगा। और इंडिया के कंटेक्स्ट में कौन सी है? इससे उल्टा हो जाएगा, गंगा पहले पे आएगी, ब्रह्मपुत्र सेकंड पे और इंडस थर्ड पे। और वॉल्यूम वाइज कौन सी होगी? ब्रह्मपुत्र, गंगा, इंडस। अब आप पूछोगे यार गंगा क्यों नहीं? क्योंकि मैंने क्वेश्चन भी लिखा है विच इज़ द लार्जेस्ट रिवर इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। मैंने यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट नहीं लिखा है। ये किस केस में? इंडियन सब कॉन्टिनेंट के केस में या इंडियन के केस में? मैंने जानबूझ के ये क्वेश्चन बनाया था। ओके, बट नाउ द क्वेश्चन इज, why does the Brahmaputra have the largest volume of water while the Indus has the lowest, even though both originate from the Himalayan glacier? अब जो मेरी इंडस है वो भी हिमालयन ग्लेशियर से बनती है, ओरिजिनेट होती है, और जो मेरी ब्रह्मपुत्र है वो भी हिमालयन से ही ओरिजिनेट होती है। बट ऐसा क्यों है कि जो ब्रह्मपुत्र है उसके पास लार्जेस्ट वॉल्यूम ऑफ वाटर है वाइल इंडस है लोएस्ट, और गंगा बीच में आएगी? इसका जो रीज़न है वो है रेनफॉल एंड मॉनसून इन्फ्लुएंस। ब्रह्मपुत्र flows through the high rainfall region of Arunachal Pradesh, Assam and Bangladesh, receiving over 50 centimeter of annual rainfall due to southwest monsoon. In the atmosphere we will understand southwest monsoon, don't worry. While Indus flows through semi-arid and arid regions like Ladakh, Punjab, Sindh, with much lower rainfall, 50 to 100 centimeter annually. तो पहला रीज़न क्या है? रेनफॉल। सेकंड इज ट्रिब्यूटरी कंट्रीब्यूशन। ब्रह्मपुत्र हैज़ लार्जर ट्रिब्यूटरीज, दिवांग, लोहित, सुबनसिरी, मानस, that had significant water volume. Indus tributaries Jhelum, Chenab, Ravi, Satluj, Byas contribute less water due to lower rainfall in their catchment area. Okay. Third is terrain and flow path. Okay. And fourth is source of water. Glacial versus rain fed. Brahmaputra is both glacial feed and monsoon feed, leading to high water. और इंडस के केस में प्रीडोमिनेंटली वो फीड होता है ग्लेशियर से, और हमने वैसे ऊपर देखा कि जो वहाँ पे रेनफॉल है वो भी कम होता है. ओके, सो फर्स्ट है हिमालयन रिवर सिस्टम में इंडस ड्रेनेज सिस्टम. जो इंडस रिवर है दैट इज़ आल्सो नोन एज सिंधु. इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर बेसिन कवरिंग ए वास्ट एरिया ऑफ 1165 स्क्वायर किलोमीटर, 11,65,000, 11,65,000 square kilometer. Within India, it spans 3,21,289. Near about 30 to 35% इंडिया के पास है ये इंडस रिवर बेसिन, and has a total length of 2880 kilometer with 11,114 kilometer flowing through India. It is also westernmost Himalayan river in India and play a critical role in the hydrology and ecology of the region. Okay, so ये है मेरी इंडस ड्रेनेज सिस्टम की डायग्राम. जो मेरी इंडस रिवर है ना, वो मेरी ओरिजिनेट कहाँ से होती है यार? जब भी हम किसी रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे ना, उसमें ना 3-4 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है. पहला कि वो ओरिजिनेट कहाँ से हो रही है, दूसरा उसकी ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है, तीसरा उसकी इकोनॉमिकल और इन्वायरमेंटल सिग्निफिकेंस क्या है, और चौथा वो कहाँ पे ड्रेन हो रही है. 4 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है और इसी में से क्वेश्चन आते हैं.
ओके, तो इसमें काफ़ी सारी ट्रिब्यूटरी है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। जो मेरी झेलम, चिनाब, व्यास, रावी, सतलुज है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं और आने के चांसेस भी हैं एज़ कम्पेयर टू अदर साइड ऑफ ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरी का तो आपको पता ना क्या होती है। ट्रिब्यूटरी मतलब एक रिवर है, जैसे वो बीच में देखो इंडस रिवर जा रही है और उसके आसपास से छोटी छोटी रिवर उसके साथ कनेक्ट हो रही हैं। जो छोटी रिवर होगी ना, वो हमेशा ट्रिब्यूटरी कहलाई जाएगी। अगर मैं आपसे पूछूं, मान लो कि इधर जोब और गोमूल है ना, मान लो कि जोब का पानी वॉल्यूम ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू गोमूल। अगर जोब का पानी ज़्यादा है और गोमूल का कम है, तो गोमूल जोब की ट्रिब्यूटरी मानी जाएगी, देन जोब इंडस की ट्रिब्यूटरी मानी जाएगी। जिसका पानी ज़्यादा होगा और जिसका पानी कम होगा, कम वाली हमेशा ट्रिब्यूटरी कहलाई जाएगी। ओके, सो सोर्स क्या है? इट इज़ ओरिजिनेट फ्रॉम ए ग्लेशियर नियर बोकुरचू। उसकी जो लोकेशन ये है 31 डिग्री 15 नॉर्थ, 81 डिग्री 40 ईस्ट इन द तिब्बतन रीजन at an altitude of 4164 meter in the Kailash mountain range. Okay, you can also watch saw on the diagram. इसका जो तिब्बत में नाम है उसको बोलते हैं, होप आई स्पेल इट राइट, सिंगी खाम्बन। ओके, लाइन्स माउथ। Initial flow, it is moves towards northwest between the Ladakh and Yazkar range, passing through Ladakh and Baltistan. Okay, ये गिलगिट बाल्टिस्तान। और इसके जियोलॉजिकल फीचर्स क्या है नोटेबल? इट कट अक्रॉस द लद्दाख रेंज फॉर्मिंग ए स्पेक्टेकुलर जॉर्ज नियर गिलगिट इन जम्मू एंड कश्मीर। इसकी जो फर्स्ट, जो मैंने बोला था कि इसकी जो हमारी राइट साइड की जो ट्रिब्यूटरीज है उसको ही पढ़ेंगे, वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें फर्स्ट आती है झेलम, और झेलम का सोर्स क्या है? वेरीनाग स्प्रिंग, पीर पंजाल रेंज, कश्मीर। फ्लो passes through Srinagar and Bular Lake, entering Pakistan through a deep gorge. Confluence joins Chenab near जंग पाकिस्तान। कॉन्फ्लुएंस मतलब जहाँ पे रिवर, दो रिवर ज्वाइन करती है, उस पर्टिकुलर एरिया को कॉन्फ्लुएंस बोलते हैं। सेकेंड है रावी। इसका सोर्स क्या है? वेस्ट ऑफ रोहतांग पास, कुल्लू हिल्स, हिमाचल प्रदेश। फ्लो पासिस थ्रू चंबा वैली। कॉन्फ्लुएंस ज्वाइन चेनाब नियर सराय सिंधु, पाकिस्तान। ड्रेनेज एरिया क्या है इसका? बिटवीन सदर्न ईस्टर्न पीर पंजाल एंड दौलतदार रीजन्स। आगे ब्यास। इसका सोर्स क्या है? ब्यास कुंड नियर रोहतांग पास। फ्लो क्या है? पासिस थ्रू कुल्लू वैली, फॉर्मिंग gorges as Kati and Largi. Confluence merges with Satluj near Harike. Second है Satluj. It is strategically significant for irrigation. इसका सोर्स क्या है? राक्षसस्थल, राक्षस ही बना दिया यार। राक्षसस्थल नियर मानसरोवर तिब्बत एट 4555 मीटर एल्टीट्यूड। फ्लो क्या है इसका? रन पैरेलल थ्रू इंडस फॉर 400 किलोमीटर बिफोर एंटरिंग इंडिया, passes through Shipkila and enters the Punjab plain via George at Rupar. इसका की फीचर क्या है? एंटीसीडेंट रिवर, क्रूशियल फॉर बोथ भाखरा नंगल प्रोजेक्ट एंड कनाल सिस्टम। आगे है, इन पांचों में से जो सबसे इम्पोर्टेंट है ना, वो है चेनाब। चेनाब इसलिए है क्योंकि ये डिस्प्यूट का कारण भी है। फॉर्मेशन कैसे होती है इसकी? कॉन्फ्लुएंस ऑफ ए चंद्र एंड बाघा रिवर एट टांडी नियर केलोंग, हिमाचल प्रदेश। द चेनाब रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द बारासिगरी ग्लेशियर विच फीड द चंद्र रिवर। द चंद्र रिवर देन ज्वाइन द बाघा रिवर एट टांडी, हिमाचल प्रदेश, टू फॉर्म ए चेनाब रिवर। जो चेनाब रिवर है वो डायरेक्ट ग्लेशियर से नहीं बनती। बारासिगरी ग्लेशियर से जो मेरी चंद्र रिवर है वो निकलती है और वो भागा रिवर के साथ कॉन्फ्लुएंस करती है, ज्वाइन होती है एक टांडी में, वहाँ से मेरी चेनाब रिवर बनती है। ओके, इसका अल्टरनेट नाम भी है चंद्रभागा।
इसकी लेंथ 1180 किलोमीटर है बिफोर एंटरिंग टू पाकिस्तान। अब इसमें हमने यूज़ किया एक पर्टिकुलर ग्लेशियर जो कि इम्पोर्टेंट भी है, 12 शिगरी ग्लेशियर। इसका इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस क्या है 12 शिगरी ग्लेशियर का? इसकी लोकेशन और जियोग्राफिकल फीचर क्या है? 12 शिगरी ग्लेशियर इज द लार्जेस्ट ग्लेशियर इन द हिमाचल प्रदेश, लोकेटेड इन द लाहौल स्पीति रीजन ऑफ द वेस्टर्न हिमालय. It lies at the Chandra River Valley, a tributary of the Chenab River. The glacier is approximately 30 km long, making it one of the longest in the Himalayas. One of the longest, not longest. इसकी हाइड्रोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है? Source of water, it feeds to Chandra River, which later joins the Chenab River, an important water source for agriculture and hydropower, glacial meltwater and hydroelectric potential भी है इसमें. ये सबसे इम्पोर्टेंट है. The health of this glacier impact the water flow of the Chenab River. If the glacier undergoes changes due to the climatic factor, it can alter the river volume, affecting water availability for Chenab, which may significantly impact Pakistan. अगर पाकिस्तान को बर्बाद करना है तो इस ग्लेशियर को बर्बाद कर दो. इट्स अ जोक पार्ट. ऐसा नहीं करना हमें. मतलब कि अगर इस ग्लेशियर को इम्पैक्ट होगा ना तो पाकिस्तान पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा. इंडिया पे भी इम्पैक्ट होगा पर ज़्यादा इम्पैक्ट पाकिस्तान पे होगा. क्यों? वो हम आगे जानेंगे इंडस वाटर ट्रीटी में. एक हमने फर्स्ट ग्लेशियर पढ़ा, हमने कौन सा पढ़ा? 12 शिगरी ग्लेशियर. और सेकंड है सियाचिन ग्लेशियर. सियाचिन ग्लेशियर ना वन ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट है वेटल का. एक वीडियो देखते हैं, उसके ज़रिए हमें पता लगेगा जो ये बैटल फील्ड है हाईएस्ट, वहाँ पे कंडीशंस क्या है. हमारे जो आर्मी के लोग हैं वो कैसे सर्वाइव करते हैं -50 डिग्री पे, -40 डिग्री पे. लेट्स वॉच दिस वीडियो. ये है रियल जूस, गुआवा का. ये है, ये हमारा ऐसे करके पतीला का अंदर में डाल के गरम करके पीना पड़ता है. एक बस हमारे मारने से भी नहीं. उसके बाद बोलो ना अभी. ये मारने से भी ये नहीं टूटता है. हमारे से मारने के बाद भी टूटता नहीं है. उसके बाद ग्लेशियर में अंडा आता है. ये है पत्थर का जैसा. आदमी का असली भी नहीं टूटता नहीं है. ये देखो फिर हमने इतना मारा मजबूरी से बनाना पड़ता है. इतना टूटा है बे. ये थोड़ा सा छिलने से भी देख, ये देख, ये है ग्लेशियर का अंडा. ग्लेशियर में ये भी फिर आपने देखा कि वहाँ पे कितनी ठंड है कि जो अंडे है, जो रियल जूस है वो जमी गया है. वो हमारा फौजी भाई बोल रहा था कि हमें रियल जूस को बॉयल करके पीना पड़ता है, इतनी ज़्यादा ठंड है सियाचिन ग्लेशियर में. इंडिया के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है सियाचिन ग्लेशियर? वट इज सिग्निफिकेंस ऑफ सियाचिन ग्लेशियर फॉर इंडिया, फॉर इंडियन नेशनल सिक्योरिटी? इसकी पहले लोकेशन जानते हैं. इट इज़ सिचुएटेड इन द काराकोरम रेंज. सियाचिन इज़ द वर्ल्ड हाईएस्ट बैटल फील्ड covering about 76 kilometer. It lies close to the India-Pakistan-China tri-junction, making it a highly sensitive area. आप इस मैप पे देख सकते हो सियाचिन ग्लेशियर. इसके ऊपर आपको ना एक शक्सकम वैली दिख रही होगी सियाचिन ग्लेशियर के सीधा ऊपर. ओके, जो ये ब्राउन पार्ट है ना, ये इंडियन का पार्ट है, बट पाकिस्तान ने क्या किया है, इसको चाइना को दे दिया है. पाकिस्तान इज सीडेड दिस एरिया टू चाइना. अब आप येलो वाला देख रहे हो राइट में, ये एक्साई चिन है. ऊपर गिलगिट बाल्टिस्तान है और साइड में आज़ाद कश्मीर है. पाकिस्तान ने चाइना को इसलिए दे दिया वो रीज़न क्योंकि पाकिस्तान को तो पता है वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा. तो दो देशों की लड़ाई के बीच में ना और एक देश को और लेके आ गया.
ताकि पाकिस्तान ने ये स्ट्रेटजी अपनाई ताकि उसका हमेशा अपर हैंड रहे, क्योंकि इंडिया अब अकेला हो गया, उसके साथ में 2 देश हो गए। पाकिस्तान अब अकेला होता तो कम ताकतवर होता है एज़ कम्पेयर टू, अब उसके साथ उसका एक साथी है। मिलिट्री कंट्रोल, इंडिया हैज़ कंट्रोल द सियाचिन ग्लेशियर सिंस ऑपरेशन मेघदूत इन 1984। Although Pakistan had done the attempt to occupy its control, but not successfully able to control it. Its control helped India prevent a direct link between POK and China Aksai chain, which could have serious security implications. अगर सियाचिन ग्लेशियर पे हमारी इंडियन फोर्स नहीं ना होती तो अक्साई चीन और सक्शम वैली ज्वाइन हो जाते और it has a serious security implications. Controlling Siachen glaciers, ensuring India's dominance over Ladakh and promotes critical military and civilian infrastructure. जो मेरे कश्मीर और लद्दाख का रीजन है ये पूरा ना 45% इंडिया रेगुलेट करता है, 25% चाइना और 35% पाकिस्तान। इट मीन्स जो हमें 55% हिस्सा वापस लेना है। अब वो कैसे आएगा, कब आएगा, लेट्स सी। ये ऑफिशियल मैप है जो इंडिया ने प्रपोज किया था। लद्दाख को यूनियन टेरिटरी के रूम में अलग कर दिया है और जम्मू कश्मीर को अलग कर दिया है। और जो एक्चुअल में मैप है वो ऐसा है, लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। जो एक्साई चीन के साथ है वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है और जो पाकिस्तान के साथ है वो लाइन ऑफ कंट्रोल है। आप देख सकते हो जो इंडस रिवर है वो लेह से होके कारगिल में जा रही है, फिर पीओके में जा रही है, फिर पाकिस्तान में जा रही है। ओके अब ये क्वेश्चन है जो 2020 में आया था। सियाचिन ग्लेशियर इज सिचुएटेड ऑन दी ईस्ट ऑफ अक्साई चीन, ईस्ट ऑफ ले, नॉर्थ ऑफ गिलगिट या नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली। पहला ऑप्शन है ईस्ट ऑफ अक्साई चीन, ये तो सरासर गलत है, वो ईस्ट नहीं वेस्ट की तरफ है। ईस्ट ऑफ ले ये भी सरासर गलत है क्योंकि वो नॉर्थ की तरफ है। नॉर्थ ऑफ गिलगिट ये भी गलत है क्योंकि साउथ की तरफ है। तो हमारा आंसर क्या बचा, नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली। नुब्रा वैली भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेना। अब आई इंडस वाटर ट्रीटी ऑफ 1960। It is enacted in 1960. The Indus Water Treaty allocates control over rivers between India and Pakistan, which facilitated by the World Bank. The treaty aimed to regulate water distribution and prevent conflicts between the two nations. एक थ्योरी है, अब उस पर्टिकुलर बंदे का नाम भूल गया मैं, उसने बोला था कि जो थर्ड वर्ल्ड वॉर है ना वो पानी के पीछे होगा और होगा भी वो इसी रीजन में, हिमालयन रिवर में। जो चाइना ने तिब्बत पे कब्जा किया है बिकॉज ऑफ इट्स रिसोर्सेज, बिकॉज तिब्बत इन रिच इन रिसोर्सेज। तो अब एक्साई चीन पे भी कब्जा कर लिया है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट एक थ्योरी है, हाइपोथेसिस है, इट कैन लीड टू ए वर्ल्ड वॉर 3। होप ये ना हो। इंडस वाटर ट्रीटी के अकॉर्डिंग जो वेस्टर्न रिवर है ना वो कंट्रोल करेगा पाकिस्तान, जो ईस्टर्न रिवर है वो कंट्रोल करेगा इंडिया। पर वेस्टर्न रिवर कौन कौन सी है, 3 रिवर है, इंडस, झेलम और चेनाब। जो इंडस, झेलम और चेनाब है वो कंट्रोल करेगा पाकिस्तान। ऑल्दो ये सारी रिवर जहाँ इंडिया से रही है, बट हमने सोचा कि चलो है तो पाकिस्तान अपना ही, इसको भी थोड़ा सा हिस्सा दे देते हैं पानी का। यार एज़ पर ह्यूमैनिटी
हम किसी का पानी बंद नहीं कर सकते, वैसे भी हम रिवर पे कंट्रोल थोड़ी ना कर सकते हैं। अगर हम रिवर को बीच में से बंद भी कर दें तो उसका इतना सारा जो पानी आ रहा है वो कहाँ को भेजेंगे हम? इट्स ऑब्वियस। जो इंडिया के पास है वो है 3 रिवर्स, रावी, व्यास, सतलुज। इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग जो इंडिया हैज़ फुल राइट्स ओवर द ईस्टर्न रिवर्स रावी, ब्यास, सतलुज एंड लिमिटेड राइट्स ओवर द वेस्टर्न रिवर्स। देखो जो रावी, व्यास और सतलुज है इसके ऊपर तो पूरा कंट्रोल है इंडिया का, इंडिया चाहे कुछ भी करे इसके साथ। बट जो पाकिस्तान कंट्रोल कर रहा है वेस्टर्न रिवर, उसके ऊपर भी इंडिया का कंट्रोल है बट लिमिटेड है। इंडिया कैन यूज दोज वेस्टर्न रिवर्स फॉर नॉन कंजप्टिव यूजेस लाइक हाइड्रो पावर एंड नेविगेशन। नेविगेशन मीन्स उसके ऊपर बोट्स ट्रांसपोर्ट करने के लिए लेके यूज़ कर सकता है, जहाज नहीं होते जो, वो वाले। सो व्हाट आर द रीजन बिहाइंड द इंडिया पाकिस्तान टेंशन ओवर द इंडस वाटर ट्रीटी? The Indus Water Treaty designed to ensure fair distribution of water, but dispute persists due to the several factors. The first factor is strategic importance of water. The Indus River system is crucial for agriculture, drinking water and power generation in both India and Pakistan. Since Pakistan receives about 80% of its water from Western River, Indus, Jhelum and Chenab, it sees any Indian project on this river as a potential threat. अब इंडिया वाले क्या कर रहे हैं, जो उनके पास वेस्टर्न रिवर है ना, उस ट्रीटी में भी लिखा है कि इंडिया हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए यूज़ कर सकता है, और इंडिया वही कर रहा है जैसा उस ट्रीटी में लिखा है। बट जैसे किशनगंगा प्रोजेक्ट है झेलम के ऊपर, रेटल प्रोजेक्ट है चनाब के ऊपर, बट पाकिस्तान क्या क्लेम कर रहा है? पाकिस्तान क्लेम कर रहा है कि जो इंडिया के डैम कंस्ट्रक्शन है विच कैन रिड्यूस द वाटर अवेलेबिलिटी। The third reason is climate change and water security. As we already know, due to change in climate, glacier melting, erratic rainfall and increasing demand are straining water resources. Both nations fear future shortages, increasing the urgency for water refuse. As we already discussed, this can lead to a third world war. अब जो मेन ट्रिब्यूटरीज थी इंडस की वो हमने डिस्कस कर ली है। अब ये बची है एक शायोक और नुब्रा है, इसको पढ़ लेना, बाकी भी एक बार देख लेना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनको डिटेल में डिस्कस करने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आज तक इनमें से कोई क्वेश्चन आया ही नहीं है और इतना डीपली कोई पूछेगा भी नहीं प्रीलिम्स में और मेंस में। हाँ, अगर किसी का ज्योग्राफी ऑप्शनल है तो मे भी ये पूछ सकते हैं, ऐसे मेंस में नहीं पूछ सकते, पूछ सकते हैं पर आज तक पूछा नहीं है। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट ग्लेशियर्स, इसको भी नोट कर लो। अब ये फैक्ट है, ये तो याद करना ही पड़ेगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो रोक के इसको नोट डाउन कर लो जैसा आपको अच्छा लगे। सो गंगा ड्रेनेज रिवर सिस्टम that we will discuss in another episode. For today, that is sufficient. If you have any question, please write down in the comment section. और हम इम्प्रूवमेंट का इस लेक्चर्स में इम्प्रूवमेंट का क्या क्या स्कोप है वो भी मुझे बता सकते हो। सो वी विल फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।